Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
counting challenge. So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, सांस लेने की एक ऐसी विधि जो आपके सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल को खोलने का काम करती है। नियमित अनुलोम विलोम के कई फायदे हैं। आइए जानते हैं। रोजाना अनुलोम विलोम दिमाग को काम करता है। ये आपके स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी को भी दूर करता है। अनुलोम विलोम का रोजाना अभ्यास आपकी लंग कैपेसिटी को बेहतर करता है और रेस्पिरेटरी मसल्स में मजबूती लाता है। नियमित अभ्यास से आपकी ब्रीथिंग गहरी होने लगती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अनुलोम विलोम एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से ब्रेन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी मानसिक स्पष्टता, फोकस और एकाग्रता में सुधार होने लगता है। अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है, जो हार्ट को हेल्थी रखने में मदद करता है। में लाभदायक अध्ययन के अनुसार अनुलोम विलोम का अभ्यास फेफड़ों के कार्य और सहन शक्ति में सुधार कर सकता है। साल 2019 के एक समीक्षा लेख में पाया गया कि फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास एक प्रभावी तरीका हो सकता है। वहीं एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 20 दिन में 30 मिनट तक इस अभ्यास को करने से साइनस की सूजन में सुधार हो सकता है। दूसरा फायदा, श्वसन मार्ग की सफाई। जी हाँ दोस्तों, यह प्राणायाम
आपके श्वसन मार्ग को साफ करने में मदद करता है। इसके द्वारा आप श्वसन मार्ग की आंतरिक गंदगी, जो धूल कणों और प्रदूषण के साथ आ जाते हैं और आपकी श्वसन नाली से चिपक जाते हैं, उन्हें आप हटा सकते हैं और इसे शुद्ध कर सकते हैं। फायदा नंबर 3, निरोगी करने वाली ऊर्जा। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर को नई ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद करता है, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे भीतर प्रवेश करती है, जिससे यह आपके सामरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा फायदा, मस्तिष्क में सुधार। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से मस्तिष्क की क्षमता में सुधार होता है। यह स्मृति, ध्यान और मनोयोग को बढ़ाने में मदद करता है। फायदा नंबर 5, तनाव कम करने में सहायता। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। यह मानसिक स्थिरता लाने में और स्थिति को सुधारने में हमारी मदद कर सकती है। फायदा नंबर 6, निद्रा में सुधार। अनुलोम विलोम प्राणायाम निद्रा या नींद में सुधार करने में मदद करता है। यह नींद की गहराई और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप पूरी नींद ले पाते हैं। फायदा नंबर 7, रक्तचाप पर नियंत्रण। यह प्राणायाम रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है। नियमित अभ्यास से आपका रक्तचाप सामान्य और स्थिर रहता है। फायदा नंबर 8, हृदय के स्वास्थ्य का संरक्षण। अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से हृदय की क्षमता में सुधार होता है, रक्त प्रवाह सुचारू रूप से चलता है और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम कम होता है। फायदा नंबर 9, शरीर का ठंडा होना। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर को शीतल और शांत करने में मदद करता है। यह शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है और शांति प्रदान करता है। फायदा नंबर 11, पाचन तंत्र की सुधार। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से पाचन तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार होता है। यह आपके आहार को अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है और आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में सड़ने से रोक। दोस्तों, क्या है कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका, आइए जानते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन, सुखासन, पद्मासन किसी भी स्थिति में आपको बैठ जाना है। इस प्राणायाम में हम अपने सांस को बाहर फेंकते हैं, यानी कि एक्सहेलिंग करते हैं, और सांस को बाहर फेंकने के साथ साथ अपने पेट को अंदर लेते हैं। सांस बाहर निकालते हैं, पेट अंदर लेते हैं, जैसे आप मुझको करते हुए देखेंगे। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। तो इस प्राणायाम में आपको यही क्रिया बार बार रिपीट करनी होती है। इस प्राणायाम को आप दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। किसी आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। अब सिर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें और पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें। लेकिन ध्यान रहे, सांस छोड़ते समय ज्यादा जोर नहीं लगाना है। शुरुआत में 10 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करें। इस चक्र को 3 से 5 बार दोहराएं। आइए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के फायदे क्या हैं। कपालभाति करने के दौरान सांस को खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया से शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। ऐसा होने से शरीर कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं। कपालभाति फेफड़ों के लिए अच्छा योग है। इससे श्वसन प्रणाली स्वस्थ होती है। दोस्तों, मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। ये प्राणायाम चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद करता है और इससे वजन कम होता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये प्राणायाम रोजाना जरूर करें। कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर में नाड़ियों में जमा गंदगी साफ हो जाती है,
जिससे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है और कई जानलेवा बीमारियों से बचाव होता है। कपालभाति प्राणायाम करने से पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जिससे आंतें मजबूत होती हैं और कब्ज, बवासीर, गैस जैसी समस्याओं का समाधान होता है। आंतों के मजबूत होने से शरीर में पाचक रस भरपूर बनता है और शरीर मजबूत बनता है। ये डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। कपालभाति शरीर में रक्त के परिसंचरण को सही करता है और इससे चेहरे पर दमक पड़ती है, कील मुहासों से छुटकारा मिलता है। आपकी पेट की चर्बी कपालभाति करने से अपने आप कम हो जाती है। कपालभाति यौन संबंधी कई विकारों को भी ठीक करता है। बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। इसके लिए लोग कई तरह के शैम्पू, तेल और अन्य इलाज भी करते हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि योग भी झड़ते बालों के लिए असरदार उपाय हो सकता है। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का यह कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए। पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए।
किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है।
प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब यह है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख
और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें।